Hello dear students, welcome to English class. So in today's session we are going to discuss the question answers and the exercise of the chapter Helen Keller. I hope that you all understood what was the chapter about, okay? Now it's turn to do the question answers. So as you all know, you have to open your book as well as the notebook. In notebook we will be doing question answers and the exercise part हम book में करेंगे. Okay, so I advise you to open the notebook as well as the book. So in the notebook, first of all you have to give the heading. सबसे पहले आपको heading देनी है, that is Helen Keller. So whenever you start writing the question answers or meanings of any chapter, first of all give the heading, write the name of the chapter. Okay, after that you give the heading what the question you are attempting, that is answer the following question. Okay, after that you can write the question number. So let's start. First of all open page number 84. In Marigold book there are 6 questions given, so we are going to do that. Okay, so open your book to page number 84. So first question is, something is wrong said Helen's mother. What was wrong with Helen? तो हेलन की मम्मा ने कहा कि कुछ तो गड़बड़ है, कुछ गलत है हेलन के साथ. अब वो गलत क्या था? आंसर इज हेलन वॉज नॉट एबल टू सी और हेयर आफ्टर हर इलनेस. मीन्स बीमार होने के बाद हेलन ना तो देख सकती थी ना सुन सकती थी. ओके, नेक्स्ट शी बिकेम ब्लाइंड एंड डेफ. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल्दो हेलन कुड नॉट हेयर और सी, व्हाट काइंड ऑफ गर्ल वॉज शी? कि हेलन ना तो देख सकती थी ना सुन सकती थी, फिर भी वो किस तरह की लड़की थी? ऑल्दो शी वॉज नॉट एबल टू सी और हेयर, शी वॉज अ ब्राइट गर्ल. वो बहुत ही स्मार्ट थी, इंटेलिजेंट थी और ब्राइट लड़की थी. डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट शी वॉज नॉट एबल टू सी एंड हेयर, शी वॉज वेरी ब्राइट गर्ल. ओके, नेक्स्ट कहते हैं कि भगवान अगर किसी चीज़ की कमी कर देता है तो उसको फिर दूसरी खूबियाँ दे देता है, तो वही हेलन के साथ था. ओके, नेक्स्ट, हु अग्री टू हेल्प हेलन? हेलन को हेल्प करने के लिए किसने एग्री किया, किसने हाँ भरी? अ यंग टीचर मिस सुलिवन एग्री टू हेल्प हेलन. हेलन की हेल्प करने के लिए मिस सुलिवन जो हैं वो तैयार हो गई. नेक्स्ट, हाउ डिड मिस सुलिवन हेल्प हेलन? मिस सुलिवन ने हेलन को किस तरह की मदद की, किस तरह उसकी हेल्प की? Miss Sullivan helped Helen to understand the words. So she made her to understand the words and she made her to understand the words. Okay, next she spelled words into her hand with her fingers. So वो अपने fingers की मदद से उसके हाथों में words को spell करती थी, बताती थी. she also used hand signs, और hands हाथों के signs भी उसने use किए थे उसे explain करने के लिए. okay, now these are the 4 questions. Now question number 5 and 6. So question number 5 is, what did Helen learn when the teacher put her hand into running water? जब उसकी टीचर ने उसका हाथ रनिंग वाटर जब फ्लो हो रहा था तो उसमें जब उसका हाथ डाला तो उसे कैसा फील हुआ, या फिर हेलन ने क्या सीखा? Helen learned the meaning of water when the teacher put her hand into the running water. So she understood the meaning of water. What is water? कि इस तरह का कोई जो substance होता है वो water होता है. ये बात हेलन को समझ में आ गई. What was the most important thing that Helen finally understood? She learned that it was a word that would tell her everything she wanted to know. उसने ये सीखा, सबका conclusion उसने ये निकाला कि ये वर्ड्स हैं, लेटर्स हैं, पढ़ाई है, लर्निंग है. मतलब जब आप वर्ड्स लर्न करते हो, स्पेलिंग्स लर्न करते हो, उसकी मदद से आप बहुत सारी नॉलेज गेन कर सकते हो. शी लर्न दैट इट वाज वर्ड दैट वुड टेल हर एवरीथिंग शी वांटेड टू नो. मतलब वो जो भी जानना चाहती है उसका रास्ता वर्ड से होके जाता है. अगर वो वर्ड्स पढ़ेगी, वर्ड्स को जानने लग जाएगी तो वो बहुत कुछ सीख पाएगी. उसे जो भी जानना है वो उनके थ्रू जान सकेगी. ओके, सो दीज आर ऑल द 6 क्वेश्चन आंसर्स. यू हैव टू राइट दैम इन योर नोटबुक. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज गिवन इन योर बुक. नाउ स्टूडेंट्स, दैट इज मैच द फॉलोइंग गिवन ऑन पेज नंबर 87. The question is, match the 2 parts of sentences given under column A and B, but add but to join the 2 parts and write complete sentences.
सो आप सबको पता है बट एज अ कंजंक्शन हम यूज़ करते हैं, दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर कॉलम ए में कुछ सेंटेंसेस हैं और कॉलम बी में कुछ सेंटेंसेस हैं, हमें उन्हें ज्वाइन करना है और उनको ज्वाइन हमें बट की हेल्प से करना है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट इज हेलन लिव्ड आफ्टर इलनेस। सो हेलन लिव्ड आफ्टर इलनेस बट शी कुड नॉट हेयर और सी, मतलब वो बीमारी के बाद जिंदा तो रह गई लेकिन उसमें डिसेबिलिटीज़ हो गई, शी कुड नॉट हेयर और सी। ओके, नेक्स्ट, शी कुड नॉट सी और हेयर, शी कुड नॉट सी और हेयर बट शी वॉज वेरी इंटेलिजेंट। So despite the fact that she was not able to hear or see, but she was very intelligent. Okay, people thought that she could not learn anything, but her mother thought she could learn. So लोग सोचते थे कि वो कुछ भी नहीं सीख पाएगी क्योंकि वो ना देख सकती है ना वो सुन सकती है, लेकिन उसकी जो मदर है उन्हें पूरा विश्वास था कि शी इज़ वेरी स्मार्ट गर्ल एंड शी कुड लर्न मैनी थिंग्स। ओके, नेक्स्ट, हेलन कॉपीड द वर्ड्स। Helen copied the words but she did not understand what she was doing. So when Mrs. Sullivan was teaching her, she copied the words, लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन जब धीरे धीरे वो प्रैक्टिस करने लगी, एज यू ऑल नो दैट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो जब वो सीखने लगी तो उसे समझ में आने लग गया कि ये जो वर्ड्स हैं यही उसकी मदद करेंगे उसे और नॉलेज गेन करने में। मिस सुलिवान वॉज स्ट्रिक्ट बट शी वॉज काइंड टू हेलन। मिस सुलिवान जो है वो बहुत स्ट्रिक्ट लेडी थी लेकिन वो सुलिवान के लिए काइंड थी, अच्छी थी। ओके, सो दीज आर द मैच द फॉलोइंग। ओके, नाउ यू हैव टू ओपन पेज नंबर 88 in your book and this the question is, read the following sentences. Her clothes were always dirty, she was often angry, sometimes she lay on the floor, her parents never scolded her. तो यहाँ ये वर्ड्स यूज़ किए गए हैं, ऑलवेज, ऑफन, समटाइम्स, नेवर। ओके, सो आस्क योरसेल्फ द फॉलोइंग क्वेश्चन, पुट अ टिक अंडर द राइट कॉलम। सो यहाँ पर एक कॉलम है स्टूडेंट्स और एक टेबल है और उसमें 4 कॉलम्स हैं और इन कॉलम्स के ऊपर हेडिंग है ऑलवेज, ऑफन, समटाइम्स, नेवर। तो जहाँ आप जो काम हमेशा करते हो वहाँ आपको ऑलवेज में टिक करना है, जहाँ आप कभी कभार करते हो मतलब रेगुलरली करते हो, मोस्ट ऑफ द टाइम आप जो काम आप करते हो वहाँ पर ऑफन में टिक करना है। अगर आप वो कभी कभी करते हो तो आपको समटाइम्स में टिक करना है और अगर आप कभी नहीं करते हो तो आपको वो नेवर में टिक करना है। ओके, सो देयर आर सम सेंटेंसेस गिवन लाइक हाउ ऑफन डू यू ओबे योर पेरेंट्स एंड विजिट योर ग्रैंड पेरेंट्स, फाइट विद योर ब्रदर और सिस्टर, हेल्प अदर्स, थ्रो वेस्ट इन डस्टबिन, स्विच ऑफ लाइट्स व्हेन यू गो आउट ऑफ द रूम, leave the tap on while brushing your teeth, tear pages from your notebook. So ये कुछ sentences हैं, ये कुछ ऐसे काम हैं जो आप most of the time करते हो। ओके, सो आपको जहाँ पे भी आपको ये appropriate लगे वहाँ आपको टिक करना है। Clear? So you have understood. Now what you have to do? You have to note down the question answers in the notebook और जो भी exercise part है वो आपको book में ही complete करना है। Clear? So students, complete the chapter. In the next video we will be starting our grammar portion. Till then, have a nice day. Thank you.